Hello students, today I'm going to talk about respiratory system of humans. This is a biochemical process in which food is break down and we get energy in the form of ATP. ATP is the chemical form of energy and the full form is adenosine triphosphate. Now there are two types of respiratory systems we can have is anaerobic respiration and aerobic respiration. Anaerobic respiration में oxygen is absent and aerobic respiration में oxygen is very much present. Anaerobic respiration, there's glucose which is having 6 carbon molecules degenerates and becomes a pyruvate which is 3 carbon molecule. ये दो तरह से आप इसे देख सकते हैं. एक तो ईस्ट के अंदर जो फर्मेंटेशन होता है, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. द एंड प्रोडक्ट इज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट्स व्हाई वी गेट अ टैंगी टेस्ट व्हेन वी ईट डोसा एंड ऑल, क्योंकि उसके अंदर यीस्ट ही फर्मेंट करता है उसको. और लास्ट प्रोडक्ट जो है वो इथेनॉल होता है, इसलिए उसमें थोड़ी सी खटास भी होती है. और यू कैन सी इफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, मसल सेल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और उसका एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. नाउ लैक्टिक एसिड इज समथिंग वी आवर बॉडी डजंट नीड इट और इसी वजह से मसल्स के अंदर क्रैम्प या हमें दर्द महसूस होता है बिकॉज वो मसल सेल्स बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करने लगते हैं. So when we go for move kind of things और वॉलिनी लगाते हैं या गर्म पानी से सेकते हैं तो वापस what happens is वो जो टाइटनेस है मसल्स की वो लूज हो जाती है, ऑक्सीजन वापस उसमें जाने लगता है and then we feel relieved. The other type which is aerobic respiration in which oxygen is present, this process is happening in mitochondria and this is happening in cytoplasm. इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन को क्लब करता है एंड लॉट ऑफ एनर्जी कम्स आउट एंड द एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट वी एक्सेल. कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल हम करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस मीन्स पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन. मतलब जो खाना हम खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है तभी हमें ये एनर्जी मिलती है. लिसिस मीन्स टू स्प्लिट, टूटना, और ग्लाइकोलिसिस मीन्स ग्लूकोज का टूटना, मतलब जो हमने खाया है उसका डिसइंटीग्रेशन होना, उसका ब्रेकडाउन होना. नाउ लेट्स गो फॉर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग दो प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है, एक है इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन. In inhalation, we are taking oxygen and in exhalation, we are taking out oxygen. That means we are expiring what? Carbon dioxide in the form of carbon dioxide, right? So inhalation में होता क्या है? Now you can see the diagram of lungs. Lungs के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? दिस इज राइट मीन स्टेम ब्रोंकस और ये ट्रैकिया ऊपर से आ रहा है. दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस पार्ट इज ब्रोंक्यूल्स आर हैविंग बीइंग देयर एंड द कैविटी, द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज प्लूरा. और जो इसके बीच का पार्ट है यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं. और यहाँ एक मस्कुलर एक organ समझ लो, that is called as diaphragm is there just below the ribs. So inhalation के अंदर जो thoracic cavity का मतलब है कमर से ऊपर वाले पार्ट को thoracic cavity कहा जाता है. It expands and the ribs they lift up so that lungs को पूरा space मिले blow up होने के लिए, because we are taking oxygen in, so we need lungs to blow up. So diaphragm gets flat and the air enters into the lung. And exhalation में क्या होता है? Thoracic cavity, it can contracts
ribs comes down, diaphragm gets dome shaped again, and air exits the lungs, and this is called as breathing. इसमें दो प्रोसेस है जो continuously होते रहते हैं. That means breathing is a process in which the oxygen is going through the nostril and it is going up to the lungs. This is what is breathing is. But respiration means when this oxygen is being taken up by blood and it is being distributed to each and every organ of the body, each and every cell of the body, that becomes respiration, and that's how we get a lot of energy to work. Now, how the exchange of gases takes place. Now, you can see a diagram here with the detailing that nostrils से हमने सांस लिया. It is a passage of air. Then nasal passage में गया. Nasal passage एक तरह से filter का काम करता है because it contains mucus. जो skin होती है वहाँ पर वो हल्की सी गीली होती है, so it traps lot of the dust particles and all. It gets trapped there, it filters the air there and it passes to pharynx. Pharynx वो पार्ट है जहाँ से फूड भी जाता है और एयर भी जाती है. Now from pharynx the air goes to larynx and then to trachea. ट्रैकिया के यू कैन सी हियर, ट्रैकिया का जो पार्ट है इसमें रिंग्स होते हैं सो दैट एयर कैन गेट द फ्रिक्शन एंड गोज इनटू द लंग्स. देन ब्रोंकाइज, एंड ब्रोंकाइज के बाद ये लंग्स में चला जाता है. उसमें और छोटे छोटे एल्वियोलाइज और ब्रोंक्यूल्स होते हैं. एल्वियोलाइज इज द स्मॉलेस्ट कैविटी जिसके अंदर एयर जाती है. अब इस एल्वियोलाई की वजह से ही एयर का जो पैसेज है लंग्स के अंदर, उसका एरिया इतना बढ़ जाता है लंग्स का कि वी कैन इनहेल लॉट ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू द नीड. सो फ्रॉम एल्वियोलाई द एयर गोज टू ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को ऑर्गन को दे देती हैं और ऑर्गन्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट टेक्स इट बाय डिफ्यूजन and then oxygen in this way it is being transported to various parts of the body. Now this is the procedure that the human body follow for respiration. Thank you very much for your patience listening. Thanks a lot.